In the previous class, we have discussed about the chapter 5, that is wildlife and animals, conservation of wildlife and animals. In that topic, we have cleared conservation of forest and wildlife. As we have discussed, conservation means to protect the something from being endangered, from being vanished away from the surface of earth. So if we are talking about the conservation beta, means the plants or animals which are present on the surface of earth may be extinct in futures. So protect such kind of plants or animals. The government has taken some steps to conserve the forest or wild animals. For that purpose, government has set up basically we can say that for the conservation of plants or animals, government has taken some steps to make biosphere reserves, wildlife sanctuaries and national parks. So first of all, biosphere reserves, wildlife sanctuaries and national park. We will discuss further biosphere reserves. तो बेटा ये पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है. बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व इज अ प्रोटेक्टेड एरिया the government has set up for the wildlife animals or wild plants also. So biosphere reserve क्या है? एक ऐसा एरिया बेटा जिसके अंदर जानवर को उनके नेचुरल हैबिटेट और उन प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है. और इसका सबसे बड़ा एक रीज़न क्या है बायोस्फीयर रिजर्व का सेटअप करने का बेटा, कि आज के समय में मोस्ट ऑफ द पीपल आर हंटिंग फॉर एनिमल्स. So to protect the animals from being hunted, government has set up biosphere reserves in India, in some parts of India. तो biosphere reserve का basically motive क्या है? To protect the species of animals or plant from being extinct on the surface of the earth. So government has set up biosphere reserves. If we are talking about biosphere reserve consists of 3 parts. दैट मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 3 जोन बनाए हैं गवर्नमेंट ने. उन 3 जोन का अपना अपना एक रोल रहता है. और अगर हम बात करें उन रोल्स की, तो दैट मीन्स कि ऐसा एरिया जिसको उन्होंने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है. और 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करने के बाद बेटा तो क्या है उसमें कि कुछ ऐसा एरिया कि उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं. उसके बाद एक एरिया ऐसा है कि उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो होंगी लेकिन ओनली फॉर द साइंटिफिक रिसर्च और फॉर द other official works. And the inner part of the biosphere reserve is only meant for the wildlife animals or for the trees or plants. So before discussing biosphere reserve, first of all we have to discuss about the zone of biosphere reserve. अब देखिए बात कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इसमें 3 जोन है. सबसे पहले आता है सबसे अंदर वाला एरिया. इसको इन्होंने क्या नाम दिया है? कोर जोन. और कोर जोन को हम क्या नाम देते हैं? इनर मोस्ट जोन. इनर मोस्ट जोन क्या है? जो सबसे अंदर का एरिया है. सबसे अंदर का ऐसा एरिया जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं है. और इन केस अगर वहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है और अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो गवर्नमेंट हैज़ टू पनिश सच person who is doing such any kind of activity in the innermost zone, which is known as core zone. Core zone is only protected for the wild animals or as well as the wild trees. अगर हम बात करते हैं बेटा wild animals और wild trees की, तो nowadays we can see कि हमारे आसपास के एरिया में बहुत सारे plants ऐसे हैं जो आज हम नहीं देख पाते हैं. Like we can see that neem tree, people tree also we cannot find easily somewhere. But these trees can be found easily in particular area in the core zone. If we are talking about the wild mango, जंगली आम जो है, normally जंगली आम आपको नॉर्मल कहीं नहीं मिलेगा, but it was found in biosphere reserves in Panchmadi. Panchmadi biosphere reserve has some kind of plant which are only found there. They will not find anywhere else in India. So first of all we have discussed about the innermost zone, in which no human activity is allowed. तो इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, ना ही आप वहाँ पर जा करके कुछ काम कर सकते हैं या खेती बाड़ी कर सकते हैं. नो, नथिंग. ओनली प्रोटेक्टेड फॉर द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और फॉर द plant
purposes. So second one is the middle zone. अब ये जो जोन है बेटा, ये सारा का सारा अंदर वाला जो जोन है, that is this one. This zone is only allowed for what kind of activity? Only scientific studies or research purpose. Only the special people who are doing such kind of research or any kind of scientific study, they are allowed only this area. इस एरिया के अंदर वो जाकर के अपना रिसर्च का काम कर सकते हैं. उनको भी इसमें जाने के लिए for entering the such middle zone, they have to take the permissions from the government. और इन केस अगर कोई इसमें जाना चाह रहा है तो उसके पास गवर्नमेंट की अगर परमिशन नहीं है तो फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं, they will not allow such kind of people to the middle zone. So middle zone that means एक्टिविटीज तो है वहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अपने जिनके पास गवर्नमेंट की परमिशन हो. विदाउट एनी परमिशन यू कैन नॉट मूव और एंटर इनटू द मिडल जोन. ओनली वेरी फ्यू पीपल कैन गो इन दिस प्लेस. नाउ द आउटर मोस्ट जोन, द आउटर मोस्ट जोन इज कॉल्ड ट्रांजिशन जोन और द जोन इन विच ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड. Human activity मतलब people can do their cultivation over there, they can make their houses or they can make such things that they can set up their any kind of work there. So such kind of activity only allowed in the outermost zone. इसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशन जोन. ट्रांजिशन जोन का मतलब क्या है कि उसमें हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटी को कर सकते हैं. ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स कि सम ट्राइबल पीपल्स कौन होते हैं बेटा? जो एक पर्टिकुलर एरिया में जंगलों में रहते हैं. ट्राइब्स, कबीले. जो कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जो जंगलों को ही अपना घर बना लेते हैं और उन लोगों को हम क्या नाम देते हैं? ट्राइबल पीपल्स. अब विद द ट्राइबल पीपल्स अदर पीपल कैन ऑल्सो do the activities in the particular area which is called transition area. Transition मतलब exchanges of we can say that movement of human being can also be allowed. So such kind of activity is only allowed in which area? Transition area. I hope you have got clear your doubts what is innermost zone, middle zone and outermost zone. Let us take a quick recap again. Innermost zone सबसे अंदर वाला पार्ट जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है. मिडल जोन ओनली फॉर मेंट साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस. एंड द आउटर मोस्ट जोन इज द जोन इन विच पीपल कैन डू देयर एक्टिविटीज. सो बेटा इन सालों में आपको ये चीज़ क्लियर हो गया. बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो तीन चीज़ों के लिए तीन जोन के अंदर डिवाइडेड है. इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन और आउटर मोस्ट जोन. सो दीज जोन्स आर ओनली फॉर द पर्पसेस फॉर द different kind of activities. Now we can say that a biosphere reserve may also consist other protected area in it. बायोस्फीयर के अंदर कुछ दूसरा एरिया भी प्रोटेक्टेड होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. बेटा इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए हैं जहाँ पर उन एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट देकर के उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है. अब प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने सेटअप किया ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व विच इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. दैट मीन्स अंडमान निकोबार के अंदर एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है. उसके बाद है काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व. काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व इज इन वेस्ट बंगाल वेयर मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स और दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हंटिंग. And third one is Sundarban Biosphere Reserve, which is in Madhya Pradesh. Which is in West Bengal. बेटा काजीरंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है that is in Assam and Sundarban is in West Bengal. Kanha Biosphere Reserve is in Madhya Pradesh
and Panchmani Biosphere Reserve is also in Madhya Pradesh. That means India का हार्ट कहा जाने वाला मध्य प्रदेश अपने अंदर 2 बायोस्फीयर रिजर्व रखता है, जिसमें वो वाइल्ड एनिमल्स और उन प्लांट्स प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करके रखता है जो आने वाले समय में भी धरती से गायब हो सकते हैं. So these are the biosphere reserves of India, where all the wild animals and wild trees which are being protected from the extinctions from the surface of earth. Further, what is the role of biosphere reserve in India? भाई biosphere reserve का क्या रोल है? सबसे बड़ी बात है कि सेटअप किया गया तो इसको किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया गया होगा. पहला रोल क्या है बेटा? टू हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. दैट मीन्स जंगली जीवन को कंजर्व करके रखने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या किए गए हैं? सेटअप किए गए हैं. दूसरा क्या है बेटा? मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया. पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखने के लिए भी बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए गए हैं. तीसरा इसका क्या रोल है बेटा? बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रमोट द economic development of area which is comparable with conservation of objectives. देखिए, अगर हम कभी भी किसी चीज़ की बात करते हैं तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए लोग उसको बनाना चाहते हैं. तो कुछ लोगों को एडवेंचर करने का शौक होता है, वो वाइल्ड लाइफ को पास से देखना चाहते हैं. तो उस पर्पस के लिए भी बायोस्फीयर रिजर्व्स का सेटअप किया जाता है ताकि लोग एडवेंचर का मजा ले सकें. और for taking such kind of fun they have to pay the government, and government also take earning from the other people to keep them protected or keep them safe. Fourth जो है बेटा इसका, biosphere reserve helps in maintain of life cycle of tribal people living in that area. तो बायोस्फीयर का काम क्या है बेटा? जो ट्राइबल पीपल वहाँ रहते हैं उन लोगों की लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके रखने के लिए भी बायोस्फीयर रिजर्व का क्या किया गया है? सेटअप किया गया है, ताकि ट्राइबल पीपल को आसानी से उनकी वो जो ज़रूरतें हैं वो आसानी से पूरी की जा सके. फर्दर, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर साइंटिस्ट रिसर्च, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड टूरिज्म ऑल्सो. देखिए बेटा, साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है? बेसिकली जब हमें किसी चीज़ के बारे में डीपली स्टडी करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को डीपली स्टडी करने के लिए हमें उसके रूट्स तक जाना पड़ता है कि ये क्यों है, ऐसा कैसे है, कहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ है. ये सारी की सारी साइंटिफिक रिसर्च क्या होती हैं हमारी? यही कहलाती है कि अगर साइंटिफिक रिसर्च करना है तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इनको साइंटिफिक रिसर्च या टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इसको सेटअप करती है ताकि जो लोग साइंटिफिक रिसर्च करना चाह रहे हैं वो इजीली वहाँ जाकर के रिजर्व अपनी साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर सेटअप्स फॉर प्रोटेक्टिंग द एंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर हम बात कर रहे हैं बेटा जायंट स्क्वायरल की, nowadays we cannot see the giant squirrel anywhere, but it is still found in Panchmani Biosphere Reserve. अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था wild mango also find in the Panchmani Biosphere Reserve. तो ये सारे के सारे बेटा जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए गए हैं वो इसीलिए सेटअप किए गए हैं ताकि हम प्लांट्स और एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर रख करके उनको एक लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नाउ आई होप यू ऑल गॉट क्लियर बायोस्फीयर रिजर्व क्या है और बायोस्फीयर रिजर्व के कितने हमारे जोन होते हैं, बायोस्फीयर हमारे कहाँ कहाँ इंडिया के अंदर सेटअप किए गए हैं. फर्दर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा एंड फौना क्या है? ओके बेटा, तो हम लोगों ने रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व भी पढ़ लिया, क्यों हम ये रोल बायोस्फीयर रिजर्व क्यों सेटअप किए जाते हैं. सिर्फ एक मेन मोटिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड ट्रीज टू वॉश अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा बेटा, हो सकता है कि प्लांट्स और एनिमल्स हम धरती पर ना पाएँ.
देखिए अगर हम लोगों ने कभी डायनासोर्स नहीं देखे, दैट मीन्स दे वर एक्सटिंक्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। वो बहुत हज़ारों सालों पहले धरती से क्या हो गए, गायब हो गए, बट स्टिल देयर फॉसिल्स आर ऑल्सो फाउंड समवेयर इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। सो बेटा बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व का मेन मोटिव यही है कि पेड़ों को और जानवरों को धरती से एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोटेक्ट करके रखने के लिए बनाया गया, ताकि आने वाले समय में ये हमारी लाइफ का हिस्सा रह सके। सो दीज आर द रोल्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा एंड फ्यूना क्या है बेटा? इट इज अ बेसिकली अ एरिया वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड नेचुरली। देखिए हमारा नेचुरल हैबिटेट क्या है? वी आर लिविंग ऑन द प्लेन्स, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर लिविंग ऑन द माउंटेन्स और लिविंग इन डेजर्ट ऑल्सो, so there is natural surrounding is their particular area where they can easily be found. Okay beta, we have discussed the biosphere reserve in India. So there are 5 bioreserves in India in which the animals and plants are protected in their natural habitats. Now apart from this we have to discuss flora and fauna. Flora and fauna क्या होता है बेटा? कि जहाँ पर plants और animals नेचुरली मिलते हैं। अगर हम अपने प्लेन की बात करें तो वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ प्लांट्स हियर विच आर फाउंड नेचुरली हियर, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं। दीज प्लांट्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया और एनिमल्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, दे आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं वाइल्ड मैंगो, जायंट स्क्वायरल, तो ये बेसिकली क्या है? फ्लोरा एंड फौना है किसके? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स में। अब पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर कुछ और ऐसे प्लांट्स हैं जो वहाँ पर मिलते हैं, जैसे टीक, जामुन, फर्न। दीज आर द फ्लोरा एंड फौना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स। दैट मीन्स ये प्लांट्स और जो है वो सिर्फ कहाँ मिलेंगे? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये वहाँ की नेचुरली वहाँ पर ये मिलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? फ्लोरा एंड फौना। बट अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो सम एनिमल्स आर देयर विच आर नेचुरली फाउंड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। फ्लाइंग स्क्वायरल, आपने उड़ती हुई गिलहरी देखी है कभी? मैंने नहीं देखी। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जायंट स्क्वायरल और बाइसन्स, दे आर नेचुरली फाउंड इन द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। So we can say that bison, giant squirrel and flying squirrel are the flora and fauna of natural of particular Panchmढ़ी biosphere reserves. So these are the examples of plants and animals which are found in their natural habitats. So such kind of species which are found in particular area, they are called flora and fauna of that particular area. So further now अब हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा एंडेमिक स्पीसीज। अब एंडेमिक स्पीसीज क्या है बेटा? विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही मिलेंगे, उसको हम क्या नाम देंगे? एंडेमिक स्पीसीज। अब एंडेमिक स्पीसीज पहले भी आपको एग्जांपल है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का, कि वहाँ पर बाइसन है जो वहाँ नेचुरली मिलेगा, जायंट स्क्वायरल है वो वहाँ पर नेचुरली मिलेगा, और अगर फ्लाइंग स्क्वायरल की बात कर रहे हैं तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर में भी वो नेचुरली मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर वाइल्ड मैंगो एंड साल। साल बेसिकली काइंड ऑफ वुड जिसका हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं फर्नीचर्स बनाने के लिए और डोर्स बनाने के लिए। और वाइल्ड मैंगो जंगली आम जो मिलेगा वो सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही मिलेगा। तो दीज आर द फ्लोरा एंड फौना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। हम यही कह सकते हैं कि एंडेमिक स्पीसीज क्या है बेटा? वो स्पीसीज जो नेचुरली किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं, तो इन्हीं को हम क्या नाम देंगे? एंडेमिक स्पीसीज। नाउ बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं बेटा जो एंडेमिक स्पीसीज को अफेक्ट करते हैं। क्या? जैसे डिफॉरेस्टेशंस। डिफॉरेस्टेशंस में जंगलों का कट जाना या काट देना उनको फॉर बेनिफिशियल पर्पसेस। फर्दर इंट्रोडक्शन टू द न्यू स्पीसीज। अगर आप
जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पीसीज रह रही है और दूसरी स्पीसीज को वहाँ पे आप एंटर करवाना चाह रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो इट ऑल्सो अफेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना. एंड थर्ड वन इज इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन. दीज आर द फैक्टर्स. देखिए, इंसान अगर पर्टिकुलर किसी एरिया में जा कर के अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है तो वहाँ का नेचुरल जो सराउंडिंग होता है दैट गॉट डिस्टर्ब. और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो आज हमारी धरती से ख़त्म होती जा रही है. इन द लेक्चर वी हैव डिस्कस कि जो डायनासोर्स हैं आज से कई हज़ार साल पहले वो धरती पर एग्जिस्ट करते थे, बट नाउ ओनली देयर फोसिल्स आर फाउंड. तो यही है कि बेटा डोडो एक ऐसा एनिमल है जो पहले मिलता था, बट नाउ अ डेज अब वो डोडो एनिमल कहीं नहीं दिखाई देता है. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो हम पहले देखते थे, बट नाउ वी कैन नॉट सी देम. वी हैव सीन अ स्मॉल बर्ड जो पहले में दिखाई देती थी, बट अब कहीं नहीं दिखाई देते. दैट इज जस्ट बिकॉज द इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से इन बहुत सारे स्पीसीज के ऊपर क्या है, एक तरीके से इनके एक्सटिंक्शंस का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. सो इन दिस लेक्चर बेटा हम लोग यहीं तक करेंगे. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड रेड डेटा बुक. टिल देन टेक केयर and read this chapter carefully.